Everyone, hope you all are fine and safe at your home. First, we take pledge. I, Ankita, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Now, we will start, that is first chapter of the physics. This is your book. Now, first chapter is the force. First of all, what is the definition of force? When you push and pull to your body, any body, that it is a force. जब हम किसी भी चीज़ को push या pull करते हैं तो force है. For example, when we push a wall, this is a force. Okay, when we push a table, the table will be moved ना, but wall will not be moved. Okay, हम force तो लगा रहे हैं, that is push or pull generally, और force can be represented by F equals to dp by dt. P is the momentum. momentum क्या होता है? जब कोई भी बॉडी का मास होता है और वो मूव करती है विद अ सर्टेन वेलोसिटी, देन उसे हम मोमेंटम बोलते हैं mv. m into a, that is the acceleration, because f equals to m, this is a derivative d by dt, speed over time, that is acceleration. Another definition is f equals to ma. Okay, और force is the vector quantity, SI unit is Newton. Next topic is movement of force and equilibrium. क्या होता है ये movement of force? First of all, there are two motions, translation and rotational motion. Okay, first motion is translation. When the force acts on a rigid body, जब हम force apply करते हैं कोई भी rigid body पे which is free to move, तो वो body move करने लग जाती है in a straight path in the direction of force. जिस direction में हमने force apply करी है उसी direction में force apply होती है. अगर वो मूव करने लग जाए, दिस इज कॉल्ड लीनियर एंड ट्रांसलेशन मोशन. फॉर एग्जाम्पल, ऑन पुशिंग अ बॉल लाइंग ऑन अ फ्लोर. ओके, सेकेंड वन इज द रोटेशनल मोशन. फॉर एग्जाम्पल, रिम, व्हील, ओके, स्पिनिंग टॉप. ओके, if the body is pivoted at a point and force is applied on the body at suitable point, जब हम force को apply करते हैं एक suitable point पे, वो rotate होता है about the axis, then उसमें कौन सा motion आता है? That is rotational motion. Examples are wheel, spinning top. Okay, wheel rotates about its center ना, this is center is the pivot and wheel is pivoted at center and force is applied on the rim. Another example, when a force is applied normally on the handle of the door. जब हम डोर के हैंडल पे अप्लाई करते हैं किसको? फोर्स को. ठीक है. नेक्स्ट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स. ये मोमेंट ऑफ फोर्स है क्या? What is the moment of force? This is the central point, pivot. Okay, force. Consider a body which is pivoted at point O. If the horizontally force is applied on the body with the line of action, this is line of action, ठीक है, force is unable to produce linear motion. अब ये rotational में है, ये linear motion कैसे produce करेगा? Then direction, because the body is not free to move, but the force turns. ठीक है, ये एक लाइन में नहीं मूव कर सकती, बट ये इजीली क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, अबाउट द एक्सिस. इसलिए जो फैक्टर्स हैं जो ये फोर्स को टर्न करने में हेल्प करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे उस पर डिपेंड करता है, और ये डिस्टेंस होगा, इसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं. पाइवोटेड पॉइंट से ये वाला, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जितना डिस्टेंस होगा दैट इज द, उस पर डिपेंड करेगी टर्निंग. और ये टर्निंग इफेक्ट है क्या? इनके प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगी. दो फैक्टर्स हैं हमारे पास, दैट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स और द डिस्टेंस.
इसलिए द मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू, इसको हम टॉर्क भी बोलते हैं, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, इट कैन बी रिटन एज मोमेंट ऑफ फोर्स can be written as force into perpendicular distance. Perpendicular distance is OP. Okay, F into 2P. F into 2P. Sorry, OP. Okay, F into OP. Now, next the units of moment of force. Moment of force can be written as, that is force के unit into perpendicular distance. अब force के units हमारे पास क्या है? न्यूटन और distance के मीटर. इसलिए moment of फोर्स के यूनिट्स क्या है? न्यूटन मीटर. नाउ दिस इज इन द SI सिस्टम. नेक्स्ट वी कन्वर्ट इनटू द CGS सिस्टम. न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? ठीक है, CGS दैट इज, ये CGS में है, ये SI में है, 10⁵ डाइन होते हैं. नेक्स्ट इज द 10⁵ डाइन और मीटर में सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर. देन बेस विल बी सेम, पावर विल बी एडेड, 10⁷ डाइन सेंटीमीटर. नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 न्यूटन मीटर एंड डाइन सेंटीमीटर? 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट इज द, अगर हमारे पास फोर्स किलोग्राम फोर्स में हो तो देन 1 kilogram force into meter equals to 9.8 Newton meter. Done? Okay. Move to the next topic, clockwise and anti-clockwise movements. What are the clockwise and anti-clockwise movement? If the effect on the body is turned to be anti-clockwise, the moment of force is called, अगर effect anti-clockwise होगा, ठीक है, तो उस movement को क्या बोलेंगे? Anti-clockwise movement, and it is taken as positive. While the effect on the body is the clockwise, the moment of force is the clockwise moment and it will be taken as negative. Okay, force is the vector quantity, then moment of force equals to force into perpendicular distance, then moment of force is the also a vector quantity. Okay, next is the direction of anti-clock movement is along the axis of rotation outwards direction, but the clockwise direction inward. ठीक है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसकी जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लेते हैं वो आउटवर्ड होता है और क्लॉकवाइज का इनवर्ड होता है. ऑन अप्लाइंग अ फोर्स अप ऑन अ पाइवोटेड बॉडी, इट्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन, एक 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फर्स्ट फैक्टर इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वो वाला पॉइंट जिसपे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और सेकेंड वन इज द डायरेक्शन ऑफ द दैट इज फोर्स. ठीक है, नेक्स्ट इज द, ये जो फर्स्ट फिगर है और सेकंड फिगर है ये हमें बता रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा, पॉइंट है वो जिस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और सेकंड वन दैट इज क्लॉकवाइज. दिस इज द, बाय चेंजिंग द, देयर आर 2 फैक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स. फर्स्ट एग्जाम्पल इज द टू ओपन और शट द डोर. जब हम ओपन करते हैं डोर को या फिर शट करते हैं देन कैसे हेल्प करते हैं. ठीक है, वी अप्लाई अ फोर्स. फोर्स क्या है हमारे पास? पुश और पुल. ठीक है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बोला क्या बोला, दैट इज मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल. एफ नॉर्मल टू द डोर एट इट्स हैंडल, दिस इज द हैंडल P which is provided at the maximum distance. It means hinges पे जो होता है, ठीक है, उस पे maximum distance होता है. We can notice if we apply the force at point Q. For example, अगर हम hinges पे maximum distance apply ना करें, ठीक है, Q point पे करें तो क्या होगा? हमें ज्यादा फोर्स देनी पड़ेगी. ठीक है, डोर को ओपन करने के लिए much greater force is required to open the door. If the force is applied at hinge, we will not able to open the door. Howsoever, the large the force may be, अगर फोर्स ज्यादा होगी, because of the force at R, torque will be 0. क्योंकि इस पॉइंट पे आके हमारा जो डिस्टेंस होगा वो 90 डिग्री पे होगा. Thus the handle P is provided near the free hand of the door.
स्मॉल फोर्स एट अ लार्ज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसलिए ये क्या बोलता है, अगर हमें ओपन या शट करना है डोर, दैट इज जो फोर्स है वो एट अ लार्जर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अगर प्रोवाइड करेंगे तो इजिली ओपन या शट कर सकते हैं हम डोर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज द अपर circular stone of the handle floor grinder is provided with handle near its rim at a maximum distance from the center so that it can easily be rotated about the iron pivot at its center by applying a small force। इसमें क्या है, जितनी हम जो स्टोन होता है हैंड फ्लोर ग्रिंडर का नियर द रिम, दैट इज कहाँ पे होता है, उसके रिम पे, बिकॉज दैट इज अ मैक्सिमम डिस्टेंस, क्योंकि हमने फर्स्ट में करा जितना मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उतना हमें इजी होगा उसको यूज करने में। ठीक है, इसी में भी सेम है, दैट एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सो दैट इट कैन बी इजिली रोटेटेड अबाउट द आयरन पाइवॉट एट इट सेंटर। स्मॉल फोर्स ऑफ द मैक्सिमम डिस्टेंस। अगेन थर्ड एग्जाम्पल फॉर टर्निंग द स्टीयरिंग व्हील, जब हम व्हील को करते हैं दैट इज सेम, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड एट अ पॉइंट ए द व्हील रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज एंड द फिगर बी। ओके, जब इस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट इन द सेम फोर्थ इन द बाइसाइकिल टू टर्न द व्हील एंटी क्लॉकवाइज, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं देन अ स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द फुट पेडल, ओके, एज कंपेयर टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ a wheel of size bigger than the rear wheel so that perpendicular distance, जो हमारा perpendicular distance आता है at the point of application of, क्या है उसका, that point of application of the force from the axle of the wheel is large, इसलिए two wheels are joined by the chain through their tooth. Last example is the spanner. स्पैनर यूज टू टाइटन और लूजन अ नट, जब हम स्पैनर यूज करते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, नट को टाइट करने में यूज करने में हेल्प करता है। हैज अ लॉन्ग हैंडल, उसका लॉन्ग हैंडल होता है, क्यों होता है उसका लॉन्ग हैंडल, बिकॉज टू प्रोड्यूस अ लार्ज मूवमेंट ऑफ फोर्स बाय स्मॉल फोर्स। नॉर्मली हमेशा जो डिस्टेंस होगा दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस में होगा। ओके, नेक्स्ट इज द स्पैनर इज टर्न एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब हम स्पैनर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करते हैं तो लूजन द नट बाय अप्लाइंग द फोर्स, ओके, व्हाइल इट इज टर्न क्लॉकवाइज टू टाइट द। इट्स मीन जब हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन देते हैं तो हम स्पैनर जो नट है स्पैनर की हेल्प से उसे क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं और टाइट कर सकते हैं। दीज आर द सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू, ओके, टॉपिक moment of force. Next topic is the couple. Okay, we will continue this topic in the next session. Thank you everyone.